ओम सरस्वती मया दृष्टवा वीणा पुस्तक धारणीम हंसवाहिनी समायुक्ता माम विद्यादान करोतु मे। ओम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम के पश्चात आई वेलकम एंड ग्रीट द एमिनेंट स्पीकर्स प्रोफेसर S.C. Lakhotia, distinguished professor BHU and SERB distinguished fellow, Department of Zoology, BHU, Varanasi, and Professor Uma Chaudhary, Department of Biomedical Sciences, Bhaskaracharya College of Applied Sciences, New Delhi, and my principal, Professor Sharmila Sharma ji, Principal Shri TIKARAM KANYA MAHAVIDYALAYA, Dr. Archana Bansal, Dr. Rekha Arya, Dr. Richa, my dear colleagues and friends. In this one-day online national workshop on planning and writing grant proposal, this workshop is being organized under the DBT Star College scheme by Shri TIKARAM KANYA MAHAVIDYALAYA, ALIGARH, in collaboration with BHU. Shodha Jnanam Adharbhuta. Since the Stone Age, the journey of men to MOM, that is Mangal Mission, is a remarkable evidence of man's inquisitive nature, his thirst for knowledge, and his aspiration to think and rethink, analyze and reanalyze, search and research. Certainly, higher education provides a base, and international, national, and state bodies, organizations provide an assistance for doing research. Today, in this national workshop on planning and writing grant proposal, Professor S.C. Lakhotia and Professor Uma Chaudhary, these are two torch bearers. They will provide us how to plan and prepare the projects, from where we can get respective grants, what are the obstacles, how can we solve them, etc. As you know, funding of research is a basic need to advance and establish scientific ideas. We all want to secure funding and write effective proposals, which gets successfully funded by the several agencies. I know, sir, there are numerous questions from the scholars, from my colleagues, and they are with them for an answer and for your assistance. Now, I invite Professor Sharmila Sharma. Is she there? Ma'am, are you there? No, she is not. Must be busy in some work. So, I invite Dr. Rekha Arya, Head Department of Botany at Shri TIKARAM KANYA MAHAVIDYALAYA, and the coordinator of this webinar, to give a brief about the DBT STAR scheme and to introduce Professor S.C. Lakhotia, sir. थैंक यू ममता। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी हमारे बहुत सभी साथियों की एक इच्छा थी कि इस पर हम एक वर्कशॉप रखें, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि एक इफेक्टिव ग्रांट प्रपोजल कैसे रखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और हम लोगों को ये मौका डीबीटी स्टार कॉलेज स्कीम के अंतर्गत मिला। ये ग्रांट हमको 2019-20 में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी बॉटनी श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय को मिली। इसके अंतर्गत हम लोग कई प्रोग्राम लास्ट ईयर से कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में ये नवीनतम कार्यक्रम है। मैं इस साल के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगी कि इस साल में हम एक ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन डिजिटल एजुकेशनल टूल्स मेंट फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इवेंट वाज टारगेटेड ऑन द स्टूडेंट्स,
जिसको हमने लास्ट में एक कॉम्पिटिटिव इवेंट में कन्वर्ट किया और हमको बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले. Many number of participants, a great number. It was an enthusiastic response. Secondly, we organized, as Corona permitted us, two offline workshops, one on molecular techniques, gel electrophoresis, and second is in organic farming, vermicomposting. These were also the student-oriented event, and in this we have provided them hands-on training on both the techniques, that is gel electrophoresis for DNA separation as well as vermicomposting. Now again, it is the turn for an online event meant for faculty members. And it is mainly, we are including mainly the college faculty members because they are in, in a very puzzled state that how to get a grant for a prestigious funding agency. So in this target, in this research, in this relation, Dr. Richa Arya, Assistant Professor, Zoology Department, has suggested her collaboration and we readily agreed on it. And by the grace of Dr. Richa Arya and by the grace of God, we are having Professor S.C. Lakhotia within our company. And I think that his talk is going to be very, very, very enlightening for all of us in preparing effective grant proposal. Now a time for the brief introduction of Professor S.C. Lakhotia. Professor S.C. Lakhotia, as you know, currently a BHU Distinguished Professor and SERB Distinguished Fellow at Banaras Hindu University. He obtained his PhD from University of Calcutta in 1970 for work on dosage compensation in Drosophila. He has been actively engaged in teaching and research since then. His research areas have used the Drosophila model and span many areas like developmental gene expression and regulation, replication in chromosomes, cell stress response, long non-coding RNAs, tumor biology, and Ayurvedic biology. Quite an impressive area of study. He was editor-in-chief of the Proceedings of the Indian National Science Academy and is on editorial board of Cell Stress and Chaperones, RNA Biology and Annals of Neurosciences. He is an elected fellow of all the 3 science academies in India and a senior fellow of the Cell Stress Society International, USA. He is recipient of several awards like INSA Young Scientist Medal, SS Shanti Swarup Bhatnagar Prize, UGC Career Award, UGC National Lecturer, UGC Jagdish Chandra Bose Medal, INSA Aryabhatta Medal, etc. It is a very brief introduction. If I go on, I can continue for at least for half an hour. But I think that I should not be between you and him. And now I invite Professor S.C. Lakhotia to deliver his talk. Thank you, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैं क्या शुरू करूं या क्या क्या कहा आपने? मैं नहीं सुन पाया. सर अब आ रही है आपको आवाज हमारी? आ रही है, कट कट के आ रही है. कट कट के आ रही है? अच्छा. बीच में काफी देर गायब थी आवाज, कुछ भी नहीं आई. ओके सर, आप शुरू करिए सर. ओके, ऑलराइट, थैंक्स. डॉक्टर रेखा आर्या और आपके कॉलेज के अन्य सहयोगीगण, डॉक्टर रिचा आर्या, it's a great pleasure for me to talk at this workshop on grant writing for college teachers. ये रिसर्च की आज एक बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारे टीचिंग प्रोफेशन में, और इसमें कई दो तरह के विचार होते हैं कि क्या रिसर्च आवश्यक है, क्या हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ाने के लिए हैं वहाँ पे रिसर्च की क्या जरूरत है, क्यों इस पर इतना जोर दिया जा रहा है. मैं एक मोहित पांडे से रिक्वेस्ट करूँ कि अपना वीडियो ऑफ कर दें. मोहित पांडे जी अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, और डिस्टर्ब कर रहा है इस तरह से. मोहित पांडे जी वीडियो ऑफ कर दीजिए. रिचा, ना वीडियो ऑफ कर दें आप, मैं होस्ट या कहीं बैठ के सुने तो बेटर रहेगा. मैं एक बार कोशिश करके, हाँ हो गया.
सभी ठीक हाँ है। वीडियो ऑफ कर देंगे तो स्ट्रीमिंग भी थोड़ी बेहतर रहेगी, अगर सभी वीडियो ऑफ हाँ, कर शायद देंगे वीडियो ऑफ करने से तो स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग बेहतर हो बेहतर जाएगी। हो जाएगी जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा करना चाहूँगा कि हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो हमारा पढ़ाने का ध्येय क्या है? अब एक एक ध्येय ये होता है कि हम नए बच्चों को जो पढ़ने आ रहे हैं, उनको नए ज्ञान के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। लेकिन हायर एजुकेशन में और इवन स्कूल एजुकेशन में इन्फॉर्मेशन देना एक बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत है कि हम उनको ज़्यादा उत्सुक बनाएं, कोई चीज़ सीखने के लिए उनके मन में जिज्ञासा का भाव पैदा हो। ऐसा नहीं हो कि हमने उनको पढ़ा दिया, उनकी सारी जिज्ञासा खत्म हो गई। सारी हमारे पढ़ाने का उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उनको जिज्ञासु बनाएं। और जब जिज्ञासु बनाएंगे तब जिज्ञासा के साथ ही रिसर्च या शोध कार्य आता है। तो शोध कार्य के बेस में है आपकी जिज्ञासा, आपके मन में कुछ प्रश्न है, आपको कुछ जानने की इच्छा है, तो उसके लिए आप और अध्ययन करते हैं, खुद नई चीज़ों को देखते हैं, ढूंढते हैं, पुरानी चीज़ों को भी अध्ययन करके उनमें से कुछ नया निकालते हैं। नया निष्कर्ष निकालना है, या एक्सपेरिमेंटल साइंस में एक्सपेरिमेंट करके कुछ नई खोज करते हैं। तो इन सब के पीछे, जिसको रिसर्च कहते हैं या शोध कहते हैं, इनके पीछे है आपकी मेन जिज्ञासा। और जिज्ञासा के साथ आपके साथ होना चाहिए पैशन, एक लगाव कि हमें ये करना ही है, ये जानना ही है, उसके बिना आपके मन को शांति नहीं आए। तो ये रिसर्च और टीचिंग का अब आपस में क्या संबंध है? एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में हम अच्छे से पढ़ाएं, उनको जिज्ञासु करें, लेकिन आप रिसर्च अगर कर रहे हैं तो उसके साथ आप खुद जिज्ञासु बने रहेंगे। एक शिक्षक को भी जिज्ञासु बने रहना उतना ही आवश्यक है जितना छात्र को है। एक्चुअली तो सभी ये कहते हैं कि एक शिक्षक अपने जीवन पर छात्र रहता है, नई बातें सीखता है, तभी वो नई बातें सिखा पाता है। और इसके साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब हम, अगर अध्यापक शोध कार्य में व्यस्त है या जुटा रहता है, तो अपने छात्रों को जिज्ञासु बनाने के लिए और अधिक प्रेरित करेगा। छात्र उनको देख के प्रेरित होंगे, क्योंकि एक अध्यापक खाली अपने क्लास में पढ़ाता है, उसी से मतलब नहीं होता है। अध्यापक का चरित्र कैसा है, अध्यापक कैसा करता है, वो रोल मॉडल के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अध्यापक रिसर्च कर रहा है, उसके मन में क्यूरियोसिटी है, तो बच्चों के मन में भी आएगी क्यूरियोसिटी कि हम कुछ सीखें, कुछ नया देखें। और दूसरी बात ये है कि जो शोध में व्यस्त है, शोध में इंगेज है, उसके पास पढ़ने की सामग्री अधिक होगी। एक्सपेरिमेंटल साइंस में है तो हमारी लेबोरेटरी होगी, और लेबोरेटरी हमारी अच्छी होगी तो स्टूडेंट्स के लिए वो फायदा होगा। तो ये बात रखते हुए ही सभी जगह हायर एजुकेशन के साथ हम पढ़ाना और शोध करना एक एक समन्वित कार्य करते हैं। दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे पूरक होते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे के कम करके दूसरा हम कर रहे हैं। हमें शोध भी करना है, हमें पढ़ाना भी है। अब मेन बात आती है कॉलेजेस की। कॉलेजेस में हमारे यहाँ सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं हैं, विशेष करके विज्ञान में, जहाँ पे आज नई नई प्रगति होती जा रही, नई चीज़ें आती जा रही। तो इवन हमारे यूनिवर्सिटी में हम ये कहते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक लिमिटेशन है कि हमारे पास जितना संयोजन होना चाहिए शोध के लिए, विशेष करके विज्ञान के लेबोरेटरीज नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। तो लेकिन इसमें भी अगर अध्यापक मेहनत करेंगे तो वो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे प्रयासों से भी अपने लेबोरेटरी बना पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि अध्यापकों के मन में जिज्ञासा होने की, कि कोई चीज भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ के बारे में नया देख रहे हैं, तो आपके मन में जिज्ञासा नहीं चाहिए कि क्यों, कैसे, किस लिए, किस तरह। ये सारे प्रश्न जितने आएंगे तो आपका आप शोध में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और उसके लिए दो तरह के शोध हो सकते हैं। एक हो सकता है कि थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक, क्योंकि सोशल साइंस में या इवन साइंस में थ्योरेटिकल रिसर्च भी होती है। लेकिन इवन सोशल साइंस उन फील्डों में भी फील्ड स्टडी होती है काफ़ी, जहाँ पे कि आपको कुछ सर्वे करना है, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करके देखना है। तो एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल दोनों तरह के शोध कार्य होते हैं। दोनों मिला के भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कौन सा प्रश्न पूछना है, किस प्रश्न पे हमको काम करना है, ये डिपेंड करेगा
सबसे ज़्यादा कि हमारा प्रश्न क्या है, हमको किस विषय में रुचि है। हर आदमी हर विषय में रिसर्च नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रुचि होती है, अपना अपना उसका रुझान होता है, उसके बारे में ज्ञान होता है। उसी बेसिस पे वो अपना विषय चुनते हैं कि किस विषय में हम काम करें, किस तरह का काम करें। तो ये कोई भी नहीं बता सकता कि आप ये काम करिए और आप ये काम करिए। ये अपने आप जानना है, आपकी किस तरह की ट्रेनिंग है, आपकी किस विषय में एक्सपर्टाइज, किस टेक्निक में एक्सपर्टाइज, किस में आपका रुझान है, किसकी आपकी समझ अच्छी है, आपने उसके बारे में क्या पढ़ा है। उस बेसिस पे आप सबसे पहले अपना प्रश्न निर्धारित करेंगे, किस प्रश्न को का उत्तर आपको ढूंढना है। इसका प्रोजेक्ट लिखने का मैं समझता हूँ कि ये अगले वार्ता में होगा कि आप प्रोजेक्ट कैसे लिखेंगे, किस तरह से अपने को डिफाइन करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर है। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो होनी चाहिए कि कॉलेजेस में हम रिसर्च करें तो किस तरह के, हम बहुत हाई एंड रिसर्च नहीं कर सकते। इवन यूनिवर्सिटी में भी हम लोग बहुत सी एडवांस चीज़ें करने में झिझकते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो कॉलेजेस में नेचुरल अधिकांश कॉलेज में सुविधाएं कम है, तो आपको रिसर्च उसी ढंग की लेनी चाहिए जो कि आपके पास सुविधाएं हैं उनमें आप कर सकें। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेकर के परेशानी बढ़ेगी अनलेस आप किसी के साथ कोलैबोरेट करें, किसी के साथ, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी शोध संस्थान के साथ आप मिल के करना चाहें तो कुछ काम आप अपने यहाँ कर सकते हैं, कुछ काम वहाँ पे हो सकता है, वो कोलैबोरेशन में होता है। लेकिन कोलैबोरेशन विद इन ए कॉलेज भी हो सकता है। आप अलग अलग विषयों के लोग मिलकर एक सोचें कि ये प्रश्न हमारा है, इसका एक भाग इस विषय के अध्यापक कर सकते हैं, दूसरा भाग जिनके एक्सपर्ट दूसरी है वो कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कोलैबोरेटिव रिसर्च करने का फायदा है, जो कि एक डीबीटी ने किया स्टार कॉलेज बनाने का। इसका उद्देश्य क्या था स्टार कॉलेज को करने का, कि अभी हम पढ़ा रहे हैं अलग अलग विषय में, एकदम अलग अलग पढ़ा रहे हैं, कोई आपस में सामंजस्य नहीं है, कोई आपस में स्टूडेंट के लिए नहीं समझ आता कि वो जुअलॉजी पढ़ रहा है उसका फिजिक्स से क्या संबंध है, फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसका मैथमेटिक्स से क्या संबंध है। इसलिए स्टार कॉलेज बनाए गए, सभी कॉलेज के सभी साइंस के विभाग मिलके अपनी सुविधाएं बढ़ाएं और छात्रों को भी एक मिक्स नॉलेज दें ताकि वो एक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन कर सकें, इंटरडिसिप्लिनरी बात को समझ सकें। तो इसी का फायदा उठा करके अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाएंगे, अपने अपने प्रश्न को पूछेंगे, आपस में बात करके दूसरे विषय के लोगों से बात करके किस तरह से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या उसका प्रश्न है, उसमें कौन एक्सपर्टाइज किस तरह की चाहिए, वो उसमें क्या कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। और उससे एक फायदा करिए होगा कि आपस में बोलचाल बढ़ेगी, आपस में डिस्कशन होगा तो आपको पढ़ाने में बहुत फायदा होगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च तो बिल्कुल करनी चाहिए कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, सभी जगह। लेकिन एक एक विषय में विशेषता होती है कि इसमें आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो उसमें अब ये है कि कॉलेज में आप किस तरह की रिसर्च करेंगे। एक तो ये देखिए कि अब यूजीसी के नियम से बीएससी के, बीए के, पर्टिकुलर बीएससी के छात्रों को भी रिसर्च प्रोजेक्ट करना है। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि रिपीटेटिव हो जाए। एक जैसे एग्जांपल है कि रिपीटेटिव रिसर्च आप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक मजाकिया है ये और बहुत ने सुना भी होगा कि जैसे एक वैज्ञानिक ने सोचा कि ये देखें कि मेंढक सुनता कैसे, सुनता है कि नहीं सुनता है। पहली बात ये है, माने ये अगर हम रिसर्च करना चाहें क्या मेंढक सुनता है, सर का वीडियो उसके बंद हो गया है। ईयर होते सर का हैं वीडियो ऑन जो कर ने लेते पढ़ा हैं कुछ उनका। कंटेनर ईयर होता है लेकिन है जो ना, सुन जाके सकता सर है। को बोल के तो किसी ने रिसर्च चालू की वीडियो ऑन कि कर दीजिए। एक मेंढक को टेबल पे रखा, टेबल पे धक्का मारा जोर से तो मेंढक उछल गया। तो उन्होंने किया कि सुन सकता है। अब उसके बाद कैसे कहाँ से सुनता है, क्या पाँव से सुनता है, तो पाँव को काट दिया, एक पाँव, दूसरा पाँव, तीसरा पाँव काटते गए। एक मिनट किया है वो। तो ये जो तो प्रश्न ये उठा कि एक पाँव काटा, कम उछला, दूसरा पाँव काटा, कम उछला, तो ये उन्होंने निष्कर्ष निकाली कि पाँव से सुनता है ना। ऐसे रिसर्च नहीं करे। अरे दूसरा हुआ कि अच्छा एक मेंढक पाँव से सुनता है तो सारे मेंढक वैसे सुनते हैं, एक के बाद एक आप रिपीटेटिव कर देना। रिपीटेटिव रिसर्च नहीं है कि उन्होंने देखा हम भी देखें ऐसा होता है क्या। और दूसरों ने जो दिखाया उसके ऊपर उससे आगे आप क्या बढ़ सकते हैं, उससे आगे आप क्या कर सकते हैं, उसको करने की जरूरत है।
न कि एक हम खाली कंफर्मेशन कर सकें। और ये भी मैं बताऊंगा कि रिसर्च करने के लिए हमेशा हाई एंड फैसिलिटी होने की आवश्यकता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के एकमात्र एक नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन है। उन्होंने जो नोबेल प्राइज पाया, उनके न कोई सुपरवाइजर थे, न उनके पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट था, न उनके पास पैसा था। उन्होंने छोटी छोटी सुविधाएं जुटा करके एक गहन प्रश्न पूछा। गहन प्रश्न के पूछने में अपना पैशन था, 5-6 साल लगाए और तब जो डिस्कवरी हुई वो नोबेल प्राइज मिली। तो ये उनका ये दृष्टांत हमें ये बताता है हाई एंड फैसिलिटी से हमारे नहीं होते। आज भी बहुत से नोबेल प्राइज या बड़े वैज्ञानिक हैं, सबके पास बहुत हाई फैसिलिटी नहीं है कि बहुत खर्च करके फैसिलिटी बनाएगी। छोटी छोटी फैसिलिटी से भी हम छोटे छोटे प्रश्न पूछें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हम नहीं जानते। जैसे कि अगर हम प्लांट्स, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस को भी देखें, जिसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को उतना नहीं उदाहरण दे पाऊंगा, लेकिन इनमें जैसे एनवायरमेंट एक कॉमन है विषय होगा एनवायरमेंटल साइंस, लेकिन रिपीटेड साइंस नहीं करें, उसमें कुछ नया करके देखें, नया देखें कि इवन जो एनिमल्स का बिहेवियर है कैसे चेंज हो रहा है या किस कंडीशन में कैसा होता है। और ये छात्रों के साथ मिलकर आप करेंगे तो इसमें डेफिनेटली छात्रों को भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। कितनी वैरायटी आपके यहाँ मिल रही है। आज हम जोड़ में टैक्सों में नहीं पढ़ाते, ना किसी को अच्छा लगता है, लेकिन उसको फील्ड स्टडी के साथ जोड़ोगे उसमें किस तरह का है तो ये भी रिसर्च हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये रिसर्च नहीं है, क्योंकि आज से 50 साल पहले किसी ने बताया कि यहाँ पे ये प्राणी मिलते थे, क्या आज ये वही है कि बदल गया? हमारा जो एनवायरमेंट बदल रहा है, हो सकता है उसके साथ वहाँ के जीव जंतु बदल गए हों, तो लेकिन इसका नॉलेज नहीं है और ये रिसर्च हो सकती है। अब उसके बाद एक प्रश्न आता है कि रिसर्च के लिए फंडिंग कहाँ से, पैसा कहाँ से आए? कुछ तो खैर आपका कॉलेज के पास अगर है, किसी कॉलेज में होता है, वो अगर देते हैं वो है, लेकिन अधिकांश भाग में कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने पास से रिसर्च के लिए बहुत फंड्स नहीं दे सकते, तो हमको उसके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना होता है। और एक जो मेन कॉलेज के लिए है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी की मेजर माइनर रिसर्च ग्रांट्स अभी भी अवेलेबल हैं, किसी दूसरे रूप में होंगी। जब तक यूजीसी है तब तक मुझे उम्मीद है कि ऐसा रहेगा। दूसरी फंडिंग एजेंसी भी करती हैं, जैसे सोशल स्टडी में ICSSR है, इंडियन सोशल साइंस रिसर्च। साइंस के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, DBT है, DST है, CSIR है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, एटॉमिक एनर्जी है, बहुत ICMR है, एग्रीकल्चर के लिए है। डिपेंड करता है आपका किस विषय में आप करना चाहते हैं, तो उनकी वेबसाइट पे देख लें कि वो किस किस विषय में सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन सब फंडिंग एजेंसीज में जनरली बड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं देते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए आपको शुरुआत अगर करनी है कॉलेज में, तो यूजीसी मेरे ख्याल से एक अच्छा सोर्स है जहाँ से कि छोटी ग्रांट मिल सकती है, आपको शुरू करें। और एक बात तो मैं बताना चाहूँगा कि शुरू से ही आप बहुत हाई एंड रिसर्च करेंगे और नहीं करें तो फ्रस्ट्रेशन होकर बैठ जाएंगे, ऐसा मत करिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, थोड़ी थोड़ी करिए छात्रों के साथ इन्वॉल्व हो करके, और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। आप जितने आपकी उत्सुकता रहेगी उतने ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मैं कुछ जनरल बातें ऐसे बता रहा हूँ। एक चीज और मैं बताऊंगा कि रिसर्च के लिए आपको पैशन चाहिए। सब रिसर्च करें, इसलिए मैं भी करूँगा, ऐसा पैशन वाली बात नहीं है। आपके मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए और एक सतत प्रयास करने की इच्छा होनी चाहिए कि हमको करते रहना है, कुछ करते रहना है। और इसका जब रिजल्ट आता है, आज ये नियम बना दिए कि आपके इतने पब्लिकेशन होने चाहिए। मैं मानता हूँ, मेरी सोच है कि ये इस तरह के नियम थोड़े गलत हुए, और इन नियमों का कारण ही हमारे रिलेटिव जर्नल इतने पैदा हो गए हिंदुस्तान में, जहाँ पे कि कोई भी रिसर्च हम पब्लिश करें उसका नहीं कोई रिव्यू होता है, ना कुछ होता है। पैसा दीजिए, पेपर पब्लिश हो जाएगा। ये रिलेटिव जर्नल से बच कर रहें, उन सब में मत इन्वॉल्व हों कि हमारे 4 पेपर हो गए, 5 पेपर हो गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। छोटा सा पेपर हो, छोटी बात है, लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि आपने ज्ञान की एक सीमा को थोड़ा आगे बढ़ाया। वो मेन मुद्दा है। तो मैं अभी यहीं पर रुकूंगा और आप लोगों से प्रश्न से मैं ज़्यादा
मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बातें बता पाऊंगा, और कुछ जो हैं तो आप लोग प्रश्न अपना करें और मैं चेष्टा करूंगा उनके प्रश्नों का उत्तर देने की। इंटरेक्टिव सेशन बेटर रहेगा मुझे लगता है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हाँ सर, कुछ जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था उसमें भी हमने आपने प्रश्न काफी सारे भेजे थे। जी जी। तो जनरल प्रश्न इसमें एक तो जैसे कोलैबोरेशन का है, कोलैबोरेशन होना चाहिए। दूसरा एक ये था कि डीबीटी में क्या सोशल साइंस वाले कर सकते हैं प्रोजेक्ट वगैरह। हर फंडिंग एजेंसी का अपना अपना मिशन है, अपनी एरिया। तो इसके लिए सबसे अच्छा है इसको जानने के लिए कि आप उन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे देखें वो किस किस तरह के रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। उसमें अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो आप उसको करिए। ऐसे जनरल कहना बड़ा मुश्किल है कि डीबीटी सोशल साइंस नहीं करेगा कि करेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है सोशल साइंस के साथ किसी साइंटिस्ट के साथ मिलकर आप कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको डीबीटी कोई भी साइंस एजेंसी है उसमें जाने के लिए एक साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन होना जरूरी है साथ में। लेकिन सोशल साइंस वाले भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी का सर्वे है, मेडिकल सर्वे है, कोई चीज़ का सर्वे है जिसमें सोशल साइंस वालों की भूमिका रहती है, तो उससे कोलैबोरेशन हो सकता है। मेडिकल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसमें भी अगर कोई सर्वे करना है तो उसमें सोशल साइंस वाले दूसरे फील्ड वाले आ सकते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन जनरली ये डिसिप्लिन बने हुए हैं सबकी। एक एक वेबसाइट पे उनके सब एजेंसीज के डिफाइन किया हुआ किस तरह के रिसर्च को सपोर्ट करेंगे। एक किसी ने पूछा था कि हाउ कैन यू फाइंड ए मेगा प्रोजेक्ट, बहुत सारा पैसा का है। ये पैसा बहुत सारा ऐसे अपने आप नहीं आता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आई एम श्योर जो अगले में बताएंगे कैसे प्रोजेक्ट लिखा जाता है, कैसे आप जस्टिफाई करते हैं कि आपको कितना चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए। ये क्वांटिटी हमें बहुत लालचियों को भी मांगने की जरूरत नहीं है। जब बहुत सारा मांग ले तो कुछ तो मिल जाएगा। ये कोई बार्गेनिंग नहीं है कि हमने 10 लाख मांगा तो 2 लाख तो मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप उतना ही मांगे जितना को आप जस्टिफाई कर सकें और जो आपके प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक हो। आपको इक्विपमेंट चाहिए तो इक्विपमेंट की सही कीमत जान के उसमें सर इसमें ऐसा भी पूछा है क्योंकि अभी आपने प्रोजेक्ट राइटिंग को नहीं लिया, तो एक सवाल ये भी था कि हाउ टू प्रिपेयर। आपकी मेरी आवाज कट रही है सर? नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ रिचा तुम बोलो। हाँ वो अभी तो आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है, एक बार फिर से बोलिए। बोलते बीच में सिग्नल थोड़ा इंटरप्ट हुआ। हाँ मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे लोगों ने बजट प्रिपरेशन भी पूछा है कि किस तरीके से बजट बनाए, जैसे हाउ टू एलोकेट फंड अमंग वेरियस हेड्स। डिफरेंट हेड्स में एलोकेट करने का सबसे अहम बात यह है आपका अंदाज कितना है, किस चीज के लिए कितना चाहिए। आपको स्टाफ चाहिए, कैसा स्टाफ चाहिए, क्यों चाहिए, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। हम सीधे नहीं मांग लेंगे हमको पोस्ट डॉक्टर फेलो चाहिए। क्यों चाहिए पोस्ट डॉक्टर फेलो? आपको रिसर्च फेलो चाहिए, रिसर्च असिस्टेंट चाहिए या सपोर्ट स्टाफ चाहिए, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो उसके उनके नियम है कि किसको कितनी सैलरी, कितना फंड मिलेगा, तो उससे कैलकुलेट करना पड़ता है। हम अंदाज से नहीं कहते कि हम जूनियर से फेलो को 10,000 देंगे कि 40,000 देंगे। इनके मानक बने हुए हैं। एक रिसर्च फेलो कितना दे सकता है, उस हिसाब से आप तो स्टाफ का बजट बनाएंगे। आपको कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए, लैब असिस्टेंट चाहिए, तो क्यों चाहिए उसको जस्टिफाई करना होगा। और चाहिए तो उसकी कितनी मंथली आपका इंस्टीट्यूशन की क्या रेट है। बहुत से फंडिंग एजेंसी में ये कहता है आपके इंस्टीट्यूशन में जो रेट दी जाती है उसी से आपको दिया जाएगा। तो वो अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग होता है। तो एक तो ये स्टाफ भी, आपको उसमें इक्विपमेंट कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सा आवश्यक है और उसकी कॉस्ट क्या है, उसको पता करके आप उसमें बजट उतना रखें। ऐसा कोई नियम नहीं कि हर प्रोजेक्ट में इतना इसके लिए होना चाहिए। ये बहुत फ्लेक्सिबल है। खाली जो 2-3 कांस्टेंट रहती है जमीन डीबीटी डीएसटी मेजर फंड्स में, एक कंटिजेंसी वगैरह के लिए उनका अमाउंट फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे डीबीटी ग्रांट में 50,000 सालाना कंटिजेंसी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आपको कंज्यूमेबल बाकी चीज़ें जो खरीदने की है, इक्विपमेंट खरीदना है या ट्रैवल करना है या और कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग बजट सेट बना के जस्टिफाई करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिक्स कुछ नहीं कि इतना ही मैक्सिमम इतना मिनिमम है। मैक्सिमम भले ही है कुछ जनरल प्रोजेक्ट में, जैसे कि बड़े प्रोजेक्ट डीबीटी के होते हैं तो कंज्यूमर में 8-10 लाख 15 लाख
सालाना से ज़्यादा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कैसा प्रोजेक्ट है। हर प्रोजेक्ट के जरूरी नहीं, किसी प्रोजेक्ट में आप हो सकता है आपका 5 लाख पर एनम में खत्म हो जाए, अगर आपको एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं, थ्योरेटिकल रिसर्च है उसमें इतना खर्च नहीं होगा, उसमें आपको कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट किस तरह का है और आप आपके पास क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी आप क्रिएट करना चाहते हैं, उस बेसिस पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी कि कितना पैसा दें। बगल में काम आम होता है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। क्या इनको म्यूट करो? हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही है किसी की भी। सर नमस्कार, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था क्योंकि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ और इंग्लिश डिपार्टमेंट में ISSR से हमें लेना बजट ग्रांट प्रपोजल पास कराना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे किस तरीके के विषय लेने चाहिए इंग्लिश के लिए कि मैं इंग्लिश में कोई प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में ला सकूं? तो मुझे थोड़ा सा विषय पर प्रकाश डालिए और कौन सी सोसाइटी से या ऑर्गेनाइजेशन से मैं अपने ग्रांट प्रपोजल को डालूं। इसको मैं बहुत स्पेशल नहीं बता पाऊँ क्योंकि मेरा सोशल साइंस वगैरह में बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन ICSSR का अगर आपके विषय जिसमें रिसर्च करना चाहते हैं तो सोशल साइंस से रिलेशन है तब तो ठीक है, नहीं तो इनसे पहले तो मेरे ख्याल से UGC ही एकमात्र स्थान है जहाँ से ध्यान मिल सकती है, क्योंकि साइंस फंडिंग एजेंसी जो इतनी है वो नहीं देंगे और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए ICSR एकमात्र है शायद, तो उनके दायरे में अगर नहीं आते हैं तो UGC से ही। और अब मैं नहीं समझता कि इंग्लिश में कितनी मेजर फंडिंग चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, और उसमें रिसर्च के लिए आपको एक जूनियर फेलो शायद जरूरत पड़ सके, तो वो भी ये है कि फेलो अपने आप की फेलोशिप लेके आ सकता है, उसको अपने फेलोशिप मिल जाती है तो आपके कंटिन्यूसी जितनी मिलती है उसमें से खर्च अगर निकल सकता है, तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा कि किस तरह का खर्च आपका है और उसका किससे सपोर्ट हो सकता है। जी सर, जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पर बनाया था अपना प्रपोजल और मैंने ICSR को भेजा था एंड इट वाज फॉर 2 lakhs, तो वो सर्वे बेस्ड था, लेकिन फिर उसका कुछ हुआ नहीं, फिर कोरोना भी आ गया। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पर एक सर्वे बनाया था कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक सर्वे करूं कि किस तरीके से जो लेवल है इस समय इंटर कॉलेजेस में या प्राइमरी सेक्शंस में एंड हाउ दैट कैन बी अपलिफ्टेड, दैट वाज माय मोटो। अब ये मैं ईमानदारी से नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में कि इसमें इंग्लिश में क्या है, इसमें सोशल साइंस का क्या है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ये तो जो विषय के एक्सपर्ट्स हैं वही बता पाएंगे कि ये सोशल साइंस के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक्सक्यूज मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। सर एक और सवाल है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ फंडिंग करती हैं? स्टेट गवर्नमेंट भी देती हैं कुछ, मेरा बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साइंस के बारे में तो उनके मुझे मालूम है कि इनकी एक डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है हर स्टेट का, जो कि फंडिंग करते हैं, लेकिन सोशल साइंस वगैरह के बारे में मुझे बहुत अनुभव नहीं है। साइंस में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज करती हैं? नहीं, साइंस में हर स्टेट में DST डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, हर स्टेट में उनका एग्रीकल्चर का एक अलग होता है, मेडिकल का अलग होता है। वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें दिया रहेगा। आजकल बहुत आसान हो गया, कुछ भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन किसके लिए रिसर्च देते हैं, कैसे देते हैं, उनकी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ओके सर। सर थोड़ा सा एक सवाल ये है, जो एक तो ममता ने आपसे पूछ ही लिया कि वो सोशल साइंसेस के लिए भी लोग जानने में उत्सुक हैं। आवाज कट जा रही है, नहीं आ रही आवाज। मेरी आवाज तो या तो आप लिख दें तो मैं स्क्रीन पे देख लूंगा शायद। अच्छा, आवाज मेरी तो आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? अभी आ रही है। हाँ, तो सर ये लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में, स्पेशली अगर आप साइंस में ही जानते हैं जैसे जूलॉजी बॉटनी में, तो कुछ इंटरडिसिप्लिनरी जो एरियाज हैं वो कौन कौन से? इंटरडिसिप्लिनरी कोई डिफाइन नहीं है, तो आप किसी के साथ भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्रश्न, कैसा प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, कौन से लोग उसमें कर सकते हैं। जैसे मटेरियल साइंस एक है, मटेरियल साइंस फिजिक्स में आ सकता है, मटेरियल साइंस केमिस्ट्री में आ सकता है, मटेरियल बायोलॉजी में आ सकता है। हम अलग अलग ढंग से इसमें मिलकर करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन तो ये ऐसा कोई डिफाइन नहीं कि ये सब्जेक्ट
इंटरडिसिप्लिनरी आएंगे। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी कोई भी चीज प्रश्न में अगर आपको अलग विधाओं से प्रश्न पूछ के उनका उत्तर पाना, दैट बिकम्स इंटरडिसिप्लिनरी। ओके। सर जैसे साइंस, अच्छा फिर वो आर्ट्स का हो जाएगा। सर एक और भी सवाल है कि ये भी है, ये भी सवाल है कि सेमिनार के लिए ग्रांट्स भी लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में कि जो वेरियस टाइप के वो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, उनके लिए ग्रांट कौन कौन सी एजेंसीज दे देती है? ऐसे सभी एजेंसी सेमिनार के लिए ग्रांट देती हैं, साइंस की सब एजेंसी देती हैं, लेकिन वो जस्टिफाई करना पड़ता है कि किस तरह की सेमिनार होनी है, कितना फंड चाहिए, कितना लोगों, साइंस अकेडमी देती हैं, लेकिन वो फंडिंग तभी मिलती है कि जब आप उसका एक कितना दायरा फैला हुआ है। आप अगर लोकल शहर में एक सेमिनार कराते हैं तो उसके लिए फंडिंग एजेंसी से पैसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे होगी तभी नेशनल फंडिंग एजेंसी उसके लिए फंडिंग देगी। स्टेट गवर्नमेंट भी देती है तो स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग होगी। लेकिन एक चीज का इसलिए थोड़ा सा सेमिनार से हो गया कि जैसे प्रोजेक्टिव जर्नल्स हो गए, वैसे आजकल प्रोजेक्टिव सेमिनार्स भी होने लगी कि सब लोग पैसा देते हैं और सेमिनार होते नहीं, सर्टिफिकेट बन जाते हैं। तो ये चीजें अब काफी इसमें लोगों को समझ के फंडिंग होती है। हाँ, लेकिन सर अभी भी ना कैरियर के लिए तो बहुत सी चीजें जो हैं वो यार्ड स्टिक्स हैं कि आपको इतने लेवल तक कंप्लीट करना है तभी आप कैरियर के आगे मूव कर सकते हैं, तो वो भी मैं समझती हूँ कि इस तरीके की बातों को बढ़ावा देते हैं। अब मैं आई एग्री, मैं इनसे बहुत सहमत नहीं हूँ कि ये क्राइटेरिया सही है, लेकिन जो अगर है तो है। तो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना एसेंशियल नहीं है, आप सेमिनार अटेंड करिए, पार्टिसिपेशन करिए, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूँ, खाली सेमिनार अटेंड हम इसलिए करें हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए, हमें इसलिए पब्लिश करें कि हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो मत करिए। मैं सीधा इसमें कहना है, आपको करना है तो आपके मन में इच्छा इसलिए करिए। ये जो नियम बनाने का यही था कि लोग थोड़े से उत्सुक हों, जागरूक हों, भाग लें, न कि ये इसलिए कि हमें एक कागज का सर्टिफिकेट मिल गया कि हमने अटेंड किया और हम खुश हो गए, इसका कोई फायदा नहीं। और ऐसे में अगर आप नहीं भी करें, प्रमोटेड नहीं भी हो, तो मुझे कोई खराब नहीं लगेगा। अगर क्योंकि वास्तव में देखें तो अच्छा तभी होता है जब हम उसमें दिल से जुड़ के कुछ सीखने के लिए सेमिनार अटेंड करें। सेमिनार अटेंड करने का, ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही था कि आप जाएंगे, 10 लोगों को सुनेंगे तो कुछ नई बात आपको आएगी। लेकिन हम खाली सबके लेने जाएंगे तो फिर मैं तो उसमें कुछ नहीं करना चाहूँगा। और से कुछ कोई सवाल पूछना, और अगर कोई और भी अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से, तो आप अनम्यूट कर कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीबडी अमंग यू? हेलो जी जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा इसको बताइए। फिजिक्स के अभी जो हमें मेटेरियल साइंस के बारे में थोड़ा बोले थे अभी जस्ट आप थोड़ा सा, तो जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत रिसर्च वर्क बढ़ाना है आगे, तो थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालिए रखा सर। मैं फिजिक्स का व्यक्ति नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं बताऊँ, लेकिन आप किसी विषय में भी किसी में भी रिसर्च करेंगे तो पहले उसके बारे में जानिए कि किस पर्टिकुलर विषय में आपको करना है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपका कौन सा प्रश्न है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स तो एक बहुत बड़ी एरिया है, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपका एक्सपर्टाइज है, आप उसको आगे करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसके बारे में पब्लिश का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। क्योंकि अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो कोई माने नहीं है। तो उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को आप समझ के उसके आगे कैसे बढ़ेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। जी सर, जी सर। और कोई किसी का भी कोई और प्रश्न हो तो प्लीज सर, जो anybody wants to ask any question? I would like to. Hello, Mamta, can I ask a question? Yes, surely, Viniti ji, आप पूछिए। Namaste, Dr. Sahab. It has been so nice listening to you. मेरा ये एक थोड़ा सा क्वेरी है कि आजकल बहुत सारी प्राइवेट फंडिंग बॉडीज भी आ गई हैं जो हमको फंड दे रही हैं, और आप कहाँ तक इस चीज़ को एडवाइस करेंगे कि कोई भी एक एजुकेशनल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उन लोगों से मतलब प्रेफरेंस तो नहीं देते हम उनको, हम बहुत क्रिटिकल भी होते हैं। ऐसा है
कि आई एम सॉरी कि प्राइवेट फंडिंग से कोई हमें जुड़ाव नहीं होना चाहिए। प्राइवेट फंडिंग भी अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं दैट्स वेरी गुड। एक्चुअली प्राइवेट फंडिंग बढ़नी चाहिए हमारे देश में। बट इसका कमजोरी एक यही है कि प्राइवेट फंडिंग बहुत कम है। और प्राइवेट फंडिंग अप्लाइड वैल्यू में हो सकती है, बेसिक भी होनी चाहिए। अगर वो कर रहे हैं सपोर्ट आपको तो उसको लेने में कोई नुकसान नहीं है। मैं तो नहीं सोचता कि कहीं भी ये कहते हैं कि प्राइवेट फंडिंग लिया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर आपने रिसर्च की है, अच्छा काम किया है। फंडिंग कहीं से भी हो। नहीं सर, क्रेडिट की बात नहीं है, वो बेसिकली वुड लाइक टू नो लूपहोल्स क्या हो सकते हैं उनकी फंडिंग में। जैसे सरकार के तो बहुत क्लियर कट होती है गाइडलाइंस। नहीं, गाइडलाइन तो प्राइवेट फंडिंग के रहते। प्राइवेट फंडिंग में अगर वो ये चाहें कि आप उनकी इच्छा अनुसार रिजल्ट निकाल के दें तो गलत है। हाँ जी, प्राइवेट फंडिंग होनी चाहिए रिसर्च और रिसर्च से, जनरेटिंग नॉलेज फॉर सेक ऑफ नॉलेज। जी आजकल जैसे अभी मेन जो प्रॉब्लम आई है कि फार्मा इंडस्ट्री की जैसे अभी कोविड के टाइम, कोविड-19 के टाइम बहुत सी झूठी रिसर्च हुई है, बहुत से पेपर पब्लिश हो गए क्योंकि बिल्कुल उनके दौर। तो ये फंडिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसमें एक चीज आजकल जो काफी आती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आपने जो रिसर्च की उसका जो रिजल्ट आया उसमें क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि कोई बायस है, तो ये ध्यान रखें। बाकी प्राइवेट फंडिंग से कोई नुकसान नहीं है। ऐसा है कि वो रिसर्च में कुछ रस्सी नहीं बांधते कि आप ऐसे करेंगे ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, तो गलत है। जी तो सर फिर ये जो एक प्राइवेट फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या एनजीओज हैं या इनका कोई क्रेडिबल करके कोई हम लोग एक वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते जिससे हम टीचर्स को हमको भी एक क्रेडिबिलिटी मिले, अकाउंटेबिलिटी मिले किसी प्राइवेट फंडिंग के संग किसी भी पार्टनरशिप में एंड अप करने में। मैं नहीं समझा कि एनजीओ मतलब सर अभी तो हम नेट पे खोलते हैं तो हमें 10 प्राइवेट फंडिंग बॉडीज मिलती हैं विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, हमें मिल जाती हैं सर। बट हमें ये पता नहीं है कौन सी कितनी अकाउंटेबल है, कितनी क्रेडिबल है। ये तो कोई नहीं कह पाएगा जी, कोई नहीं कह पाएगा। ये तो आपको उनके प्रीवियस हिस्ट्री से देखना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया है, उनसे कहाँ फंडिंग करते हैं, क्या यूज करते हैं। लेकिन as long as the research grant is without any ifs and buts, okay sir, so it should be fine. Okay sir, लेकिन वो आपको देखना ही पड़ेगा कि आप जो रिसर्च आप कहीं मान लीजिए कोई कहते हैं आप रिसर्च करें पूरा नॉलेज उनका है, आपका अधिकार नहीं है, तो गलत। क्योंकि एज रिसर्चर यू हैव योर राइट। अप्लाइड की तो दूर की बात है, अप्लाइड में तो पेटेंट का होगा, बहुत से सवाल होते हैं कि पेटेंट किसके नाम होगा, कैसे होगा, कितना शेयर होगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन बेसिक रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसमें प्राइवेट फंडिंग हो, लेकिन जो फंडिंग एजेंसी दे रही है उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह का कोई गलत काम करने वाला नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। रेनू शाक्य जी, आपने अपना हैंड रेस किया था, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए। Anybody else who wants to ask the question? Any question? संगीता दीदी जी आप जी दीदी। नमस्कार। It is wonderful getting guidance from you. तो सर ये थर्ड ईयर में जो प्रोजेक्ट आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट थर्ड ईयर में सर आवाज आ रही है आपको सर आ रही है? दीदी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आप पूछ लीजिए। आप में आवाज आ रही? जी आ रही है। तो क्वेश्चन ये है कि थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट आया है कि स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें किस टाइप के हम प्रोजेक्ट्स करा सकते हैं? हमारी जब अपने डिपार्टमेंट जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर्स थे उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये प्रोजेक्ट सर्वे बेस करा लीजिए क्योंकि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुत है। सर मैं बताती हूँ। सर मैं रिपीट करूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है, बताओ। हाँ, तो जब वो ये पूछ रही हैं कि जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई,
मैं थोड़ा लाउड बोल रही हूँ और थोड़ा माइक के पास भी हूँ। तो सर वो ये पूछ रही हैं कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कराने के लिए, थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट कराने के लिए आया है, कहा गया है कि स्टूडेंट को आप प्रोजेक्ट कराइए। तो वे जानना चाहती हैं कि लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स करवाइए क्योंकि आपके पास बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो क्या कोई इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन है कि किसी सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस, क्या केवल प्रोजेक्ट सर्वे बेस्ड कराए जाने चाहिए स्टूडेंट्स को बीएससी के? ऐसा कोई नियम नहीं है कि सर्वे बेस्ड ही होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही होना चाहिए। डिपेंड करता है किस तरह की चीज कि आप स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहते हैं। स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में तो मेन बात ये है कि उनमें एक ट्रेनिंग हो, कि उनके क्यूरियोसिटी हो, क्यूरियोसिटी को डिफाइन कर पाए और उसको आंसर पाने के लिए किस तरह से उसमें मेथड यूज करें। तो इसलिए वो करना है। लेकिन वो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है जिसके लिए आपको फंडिंग की जरूरत हो या कुछ हो। अगर फंडिंग आपके पास है तो आप उनको ठीक है थोड़ा एक्सपेंसिव वर्क या थोड़ा एक्सपेंसिव वर्क भी करवा सकते हैं। बट बेसिकली इट शुड बी समथिंग दैट कैन बी डन इन ए क्लासरूम और इन सराउंडिंग एरिया। अगर सोशल साइंस का सर्वे करना है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट किस तरह का है, क्या क्या आपका प्रश्न है, उस पर डिपेंड करेगा। जी डॉक्टर, नहीं मतलब ये है कि उसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट परचेज किया जाना चाहिए एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, किस तरीके के वो होने चाहिए? सॉरी नहीं क्लियर हो बात, आवाज आई नहीं पूरी आपके यहाँ सर के? हाँ, थोड़ा सिग्नल लैब में थोड़ा। सर वो पूछ रही हैं क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहिए या उसको कैसे कर? नहीं आ रही है। 1 मिनट में आएगी वो, मेरे ख्याल से थोड़ा लैग है सिग्नल में। सर चैट बॉक्स देखिए एक बार। चैट बॉक्स, okay, let me see. What are the source of international funding in the area of social science? मैं सोशल साइंस बारे में बहुत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो आप सर्च कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि मैंने इसमें किया नहीं है कि इंटरनेशनल फंडिंग क्या है। बट आई एम श्योर देयर आर सोर्सेस। इंटरनेशनल फंडिंग भी सोशल साइंस में होंगी, लेकिन वो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। मैं ऑफलाइन नहीं बता सकता उसके बारे में, मुझे डेफिनेट आइडिया नहीं। एक प्रश्न है व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये सवाल हुआ कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन लेने में आपका अपना स्वार्थ या आपके किसी संबंधित व्यक्ति का स्वार्थ तो नहीं अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि उससे आपका डिसीजन बदल सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे रिसर्च में एक सवाल आता है कि हमें किसी दवा कंपनी ने पैसा दिया कि आप इसके लिए दवा निकालिए। अब मैंने किया और मैं वही दवा बनाऊं जो उन्होंने बताया, उसको बता दूंगा ये ठीक है, और तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि रिसर्च एक होनी चाहिए अनबायस्ड। यहाँ पे बायस आ गया, किसी का इन्फ्लुएंस आ गया, या आपके मन में बायस है, या आप कुछ कर रहे हैं जिससे किसी को फायदा होना मॉनेटरी या अदरवाइज, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। स्पेसिफिकली सर मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मा में ये वास्तव में बहुत ज्यादा है। कंपनीज भी फंडिंग करती हैं और वो भी रिसर्च करवाती हैं। What therapy can be taken in the UG level? Well, वो तो बताया मैंने, खाली सर्वे होना जरूरी नहीं है। It can be small experiments, it can be small studies, सर्वे भी हो सकता है, सर्वे कम स्टडी एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितना समय है, कैसी फैसिलिटी है, क्या कौन सा विषय है। Any other question from anybody? सर थोड़ा सा कि हम अपने प्रपोजल को किस तरह लिखें, उस पर थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए कि हमें अपना प्रपोजल लिखना है तो व्हाट शुड बी द बेस्ट वे। मैं समझता हूँ कि ये अगले भाषण में यही बात होगी, लेकिन फिर भी कोई भी रिसर्च पेपर लिखने के लिए जैसे आप कोई भी निबंध लिखते हैं जी, एक इंट्रोडक्शन देना होता है जी, पर्पस देना होता है, फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप करने होता है। तो फंडिंग एजेंसी ने, जो रेगुलर फंडिंग एजेंसी, उनके फॉर्मेट्स हैं, उनके वेबसाइट दिए हुए हैं कि ये फॉर्मेट में चाहिए। तो बेसिकली आपको एक इंट्रोड्यूस करना है,
कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और उस बैकग्राउंड बेसिस पे आपके प्रश्न क्या स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव देने होते हैं। और अक्सर वो ऑब्जेक्टिव बुलेटेड पॉइंट्स में रह सकते हैं और ये पॉइंट्स है जिनको हम करना चाहते हैं। उसके साथ फिर आपको देना होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। हमारे साइंस में देना पड़ता है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उस विषय में किसने क्या किया है। उसके अलावा खुद ने भी क्या किया, उसका बायोडाटा में आएगा कि हमारी एक्सपर्टाइज है कि नहीं इस विषय में। जैसे मान लीजिए मैं आज कहूँ कि मैं फिजिक्स में रिसर्च करूंगा, तो मैं अपने एक्सपर्टाइज कहाँ से बताऊंगा, बतानी पड़ेगी मेरी एक्सपर्टाइज इसमें है तब मैं कर सकता हूँ। तो वो एक देना होता है। फिर उसके बाद आप एक्चुअली क्या करेंगे, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस प्रोसेस में करेंगे, आपको क्या क्या चीजें देखेंगे, ईयर वाइज प्लान क्या है। आजकल तो 6 मंथली प्लान मांगते हैं कि हर 6 महीने आप क्या क्या करेंगे, एंड देन कि उससे क्या फायदा होगा। साइंस के प्रोजेक्ट में हमको लास्ट में भी बताना पड़ता है कि आउटकम क्या होगा, क्या फायदा होगा, अप्लाइड है कि बेसिक है, इससे कौन से प्रश्न आप उत्तर करेंगे। फिर उसके साथ अपना CV लगाना पड़ता है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस और एक बजट, और बजट को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो हर फंडिंग एजेंसी के परफॉर्मा है, स्पेसिफिक कॉलम दिए हुए हैं कि इसमें आपको आंसर करना है, चाहे वो UGC का हो, चाहे DBT का हो, DST का हो, ICSR का हो, सबके अपना परफॉर्मा है। बस लेकिन मेन मुद्दा ये कि आपको आप क्या करेंगे उसको क्लियरली बताना है, ब्रॉडली एकदम। ये नहीं कि हम पूरा 6 पेज में लिख दें कि आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, उससे अच्छा नहीं। जनरल की पढ़ के उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये आपका डायरेक्शन। और इसके अलावा कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, जो रिसर्च करना चाहते हैं वो ऑलरेडी कोई कर चुका है, अगर कर चुका है तो उससे आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और लैकुना क्या चीज मिसिंग है, तो क्या आप देना चाहते हैं, ये डिफाइन करना होता है। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। सर मेरा सवाल ये था कि करंट थ्रस्ट एरियाज कैसे रिकॉग्नाइज? Sir, Rekha Didi is asking that how to recognize the thrust areas in life sciences, the current thrust areas in life sciences. देखिए करंट थ्रस्ट एरिया नाम की कोई चीज नहीं है। थ्रस्ट एरिया ठीक है, वो जैसे UGC सर्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं उस डिपार्टमेंट में किस विषय में एक्सपर्टाइज है, तो उसको थ्रस्ट एरिया कहते हैं। ये नहीं कि सबको कहें कि उसी एरिया में रिसर्च करो। हम रिसर्च सबकी अपनी पसंद है, अपनी विशेषता है, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक फंडिंग के लिए गवर्नमेंट अनाउंस कर, जैसे अभी पैंडेमिक हुआ तो कोविड के लिए एक अलग फंड बना दिया गया, वो एक फर्स्ट एरिया होगी। लेकिन ये नहीं कि उसके अलावा कोई रिसर्च नहीं होगी। ये तो स्पेशल प्रोग्राम कुछ अनाउंस किए जाते हैं कि इस एरिया में हम अलग से फंडिंग देंगे, लेकिन उसके अलावा आप कोई किसी भी एरिया में, वो हर फंडिंग एजेंसी अपनी अपनी एरिया डिफाइन किए जाते हैं कि हम इस एरिया में रिसर्च करेंगे। अब कोई कहे कि आजकल नैनोमीटर का बहुत है जमाना है, तो मैं कूद पड़ूँ, मैं नैनोमीटर करूंगा, तो आई विल कंप्लीटली मिस इट, क्योंकि मेरा कोई अनुभव नहीं है। भले वो थ्रस्ट एरिया हो, इम्पोर्टेंट हो, तो अनलेस हैव सम एक्सपर्टाइज, तो खाली थ्रस्ट एरिया ये इसलिए उसमें रिसर्च करेंगे, वो नहीं होता है। यू शुड हैव कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस इन दैट एरिया। Thank you so much, sir. And really, passion and perseverance. These are the two things which are very important for any research, as you have enlightened us in a very wide manner with your scholastic views. Thank you so much, sir. And for my two speakers, I want to say 2 lines. सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सर, आप लोगों ने हम लोगों के लिए एक रास्ता प्रशस्त किया है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम सब आगे बढ़े और नए शोध के साथ, अपने नए प्लानिंग के साथ इस शिक्षा व्यवस्था को और समृद्ध बनाएं। धन्यवाद सर। Now I'm inviting my second speaker, Professor Uma Chaudhary. Ma'am, are you here? Professor Uma Chaudhary. Richa,
जी ज्वाइन तो किया था उन्होंने, मैं भी देख रही हूँ कि लिस्ट में है वो, उन्होंने ज्वाइन किया था। हाँ है तो वो, एक बार कॉल कर लीजिए। जी हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ Good evening, ma'am. हाँ जी, It's गुड my इवनिंग। pleasure that you are here. या Professor Uma Chaudhary, she has done her PhD in biomedical sciences, and at present she is a supervisor, and her research area, they are molecular diagnostics and understanding drug resistance at the molecular level. Her teaching interests are in biochemistry, molecular biology, medical biotechnology, genome organization and function, microbiology and pathology. Ma'am's paper, they are published in very, very reputed journals at national and international level. And 3 papers, they are there. And ma'am, as we know, that patents, they are there under 5. Ma'am, I think I can start. No, ma'am. Dr. Rekha is here, and because she was having the cup, so I was speaking. I think I'll start. I'll introduce myself. I am teaching at Bhaskaracharya College, and that is something which I really like to be, I'll just share my screen and start immediately. Yeah, I can't speak. Can you hear me, all of you? Yes. We can hear. So, good evening, everyone. I am Uma Chaudhary from Bhaskaracharya College of Applied Sciences. Good evening, sir. It was such a nice and wonderful talk. I hope my slides are visible. Yes, ma'am. So, thank you, ma'am. Thank you, Rekha, ma'am. Thank you, all of you, to invite me for this interaction with wonderful lot of students. This is a small topic which I have picked up to familiarize budding scientists about what are the options for having fellowships, grants from funding agencies, and what is the entire process. But yes, students have some confusion, which I wanted to make it clear in this first slide. What is the basic difference of writing grants, writing scholarship, and fellowships? Grants basically is a step forward, which is a sum of money given by any government or any entity to an individual or to an institute to carry out a particular specific purpose that has been specified. Whereas scholarship refers to monetary aid awarded to the student so as to help him or her undergo high-level education. It is a type of grant provided to the students on their academic achievement to encourage them for doing better. Fellowship basically is a financial aid awarded to individuals willing to do research on a specific subject after they qualify a prescribed exam, most probably. And these, if you see, grants are need-based. Scholarships can be need-based, can be merit-based, they can be category-based also. Whereas fellowships are mainly merit-based. And if you see, any person or entity fulfilling the criteria mentioned for a particular type of grant can write that. Whereas scholarships is for students and fellowships are mainly for research scholars. Performance-wise, if you see, there has to be a certain standard to be met for reporting the work done that was specific for grant. Same goes for scholarship, needs to be maintained, the standards. And for fellowships, there are certain outcomes which are important, which have to be met. And these are like
The research scholar is expected to have a manuscript out of your fellowship. A proper research report has to be submitted for further taking, fellowships for further years. Fellowships are funded by government or any other organization. Fellowships can be from government, and some private companies also offer such fellowships. Now, grants, if we see particularly, it can be intramural or extramural. Intramural is like, for example, Tata Trust and other things. They are performing, the grantees are performing at their own institute. Their lab staffs are utilizing that grant, whereas extramural is from the funding agency for other organizations, and they are used for a particular specific purpose. For students per se, there can be grants for research fellowships, there can be grants for their career development, there can be grants for institutional trainings also for any particular institution. Students can get grants for research projects, program projects, and a particular institute can get grants for starting a center for that matter. You can also get fellowships or grants for individual trainings. Medical students, MD students can get grants. PhD students can get fellowships or grants. Postdoctoral trainee students can get fellowships. Then there are institutional training grants also available from funding agencies, which we can look into. There are certain areas wherein career development can be monitored. So you have mentored scientist development grant, clinical scientist grant, patient-oriented grant, quantitative research. So these have to be mentored. You have to indicate the name of the mentor while writing the grant proposal. And that mentor will actually assist you during your process of scientific research. But at the same time, you will get a sense of independence, which is over and above what a particular student might have seen at the time of doing PhD, where every objective was defined, but now gradually the student has to come up with his or her own ideas and discuss those ideas with the mentor and then execute them. Once you are through that stage, you are ready to have independent grants. So you can apply for independent scientist grants. You can apply for career awards. You can apply for other upper level mentored clinical scientist programs. You can also apply for mid-career patient-oriented research. There are a lot of funding agencies. We will go through one of them, like the one which is mentioned here, the DBT site, to give you or familiarize you with these type of grants, fellowships that are available. Also, what you can do, you should be every 15 days, or for that matter 1 month, it is advisable that students, teachers for that matter, who are writing projects should visit these sites and find out what are the different opportunities available. Once, am I audible? You are audible, but if you're moving your slides, maybe we are only seeing career development slide. Yeah, it's Yeah. at that stage only. Okay. I'm just moving the slide now. Yeah. So, all good. yeah. So when we have to start writing grant, after we have done our PhD, what do?
we will be considered as a new investigator, and we can apply to an initial stage of grant taking process and take advantage of that, because we did not have any grant before that. We were having scholarships, fellowships, etc. And once you get this grant, that was a new investigator grant, which is also kind of a scheme available in funding agencies. After that, once you finish that grant, you utilize that grant, you submit the report, you are having your proposed outcomes with you, you cannot be any longer considered as a new investigator. Now, advantage for such kind of grants is that applications are reviewed together for the same kind of people. All of the applications are for new investigators. So you are being compared to only the new investigators rather than comparison between a new investigator and a senior investigator. Then advantage is that you have a slightly better pay line than what you were getting at the level of PhD or, for that matter, postdoc. Once that step is over, so you have different steps where you are going on. Initially, when you are studying, you are doing PhD, you are getting fellowships as a researcher. Then you are moving to different postdoc positions. Then you have an opportunity to take up initial grants, initial investigator grant. So by then, there are two things that you have achieved. You might have achieved certain outcomes in your research, and you have a capability of thinking independently. So then you are ready for applying for independent research project grants, which can be small grants, like a small project, pilot project you want to see, for which no preliminary data would be required, and it will be for a limited time and funding. But it helps you, because if you have your preliminary data and you write it inside the project proposal, it will certainly help you with funding of that grant, be it be a small grant. Then there are certain exploratory or developmental grants, which are high risk, high yield grants. They are for a limited time period, again, and funding. But even if you don't have preliminary data, it is okay. But again, if you have that data, do add it to your grant proposal. It will certainly help you. You have something which is known as basic research grant, which will be a proper project. It's by an established investigator. A single project for which preliminary data is required in most of the funding agencies. Going back to these exploratory or developmental grant applications, they provide support for early stages of any researcher. This is investigator-initiated research. It may sometimes be used for pilot or feasibility studies. It can be limited to 2 years or more than that. Preliminary data that is generated is not required, as I told you, but if it is included, it should be added. Now, what are the resources that are required while you are writing the project proposal? You may require help of your mentors. Your mentor can be your PhD supervisor. Your mentor can be your supervisor for your postdoc studies, or for that matter, for initial investigator grant that you had applied. Your mentor can be peers, your own peers who had active grants. Then you can also interact with, office of the sponsored programs of your own institution. They might have some kind of knowledge that can be shared with you, which may be useful while writing the project. There are certain professional scientific societies also available, not so common here, but I have heard that in Mumbai they have, which actually give kind of a consultancy also for writing proposals. And
the kind of workshop that we have today is also going to help us, because Professor Lukotia sir has given such a wonderful session, which will certainly help all of us. Then you can also find out, everything is at the click of the mouse today. There are certain grants which have already been funded. Their proposal might be present on the website. You can search those from there. Then for every funding institute, for every program, they specify scientific officer's name to whom you can write some questions related to your project. And if once a project is either coming back for scientific review, you can check with that person where and what are the expectations. Similarly, there is a program officer in some funding institutes who can be approached. Once you have submitted the grant to a funding agency would receive all the application for particular call for the proposal. Your application is assigned to a particular review group. You may be requested to send a cover letter with your application so as to tell the funding agency that this application is for this particular section for which you have written the grant. The agency might try to accommodate, but that is not very rigid. They may change it also for certain applications. And nowadays, everything is online. You have to apply to these funding agencies online, so you can check the status also for your application on the funding agency website. So there can be different cycles of proposal submission, cycle 1, cycle 2, cycle 3. So that will vary with different funding agencies. That will also vary with different type of calls of proposal that come for submitting grant applications. Deadlines are generally given for submitting those applications, but they can be extended in some cases. And as I've mentioned already, most of these applications are made online now. Once these grant processes are in place, the funding agencies, as I had shown you in this figure, the review committee reviews the application either online or offline. That varies with different grant to grant, and gives certain scores to your grant application. For example, a score of X indicates that your application was exceptionally strong application with essentially no weakness, whereas Y can be an average score and Z can have a serious weakness. So it depends how you have written your application. Your application could get a non-numerical score. So it might even be discussed during the review process. So it varies how you have written. So what are the characteristic features that you have to remember while writing your application, so that it is, at least it doesn't fall in this category. 5 critical parameters are important. Significance of the work, how experienced the investigator or investigators are. Have you added some innovative aspect to your research grant? And what is the approach of your entire process? Is the research going to help to the society or environment? Whether it is including human subjects, inclusion, animals, has it involved some biohazard? Whether it has a resubmission option, renewal option. So overall impact of your project is based on 5 main criteria, which are scored to give the overall score to your project. Impact of the project would be very important as to what the sponsor wants after investing in your project.
hopefully the field will have to be pushed forward. And significance of your research proposal is also important. Collectively, all the reviewers will be able to assess whether that significance is coming out from your project proposal or not. Reviewers will focus at a broader picture. And then they will go later on onto the technical detail of your project. The entire grant proposal that you are submitting to a funding agency should have basic components like a small introduction, which should involve a crux of everything. Somebody reads that introduction and should be able to find out, yes, this is what you are proposing, this is what you have thought, and that would be the outcome. It should have specific aims. It should have a background and significance supported by literature review. Some preliminary study should be given, whatever you have done, in the form of progress report. Then what you have, asked for should be clearly mentioned in the form of flow chart, the research design methods. Progress report has to be submitted once the project is accepted. You are given the money, then every year project report has to be submitted to the funding agencies along with publication list. Human subjects, if are used in your project, then ethical clearance of these different agencies need to be taken. These forms for ethical clearance and other clearances are also available on the website of the funding agencies, which need to be downloaded and filled accordingly, and has to be passed through the institutional ethical committee. What are the aims of your project is most important. What is your first impression? Introduction is giving the first impression of your research grant, or for that matter scholarship proposal that you have written, or for fellowship grant that you had asked from a funding agencies. It includes the impact that the result of this research will be such, and what will be the impact of that result onto the stakeholders. List the specific objectives very clearly in your research proposal. You should create a novel design, solve a specific problem. You should challenge an existing paradigm or clinical practice, address a critical behavior, barrier to progress in the field, develop a new technology. Any one of these innovative techniques can be added to your project proposal to attract the funding agencies, and these should be highlighted in the introduction. Explain how the application challenges and seeks to shift current research that was there in that area to a new paradigm. Discuss any novel theoretical concept approaches or methodologies or any advantage over existing ones. You have to explain very critically the improvements that your project proposal is, going to have on already established methodologies. Of course, in the project proposal, in the beginning itself, and most of the funding agencies, they will ask you for a biographical sketch section wherein you have to give your own expertise, qualification of the investigator, the co-investigator, and also highlighting why you are well suited for this role in the project. And believe me, don't be shy. You have to put everything there. Explain your expertise clearly to the funding agency. Publications already in place for these research grants, big level grants, need to be more than 10 to 15. So
reviewers will be considering your application based on either if it is early stage investigator or new investigator, then they do have appropriate experience or training. That is it. Not very critical in number of publication, of course, but if you are an established project investigator, then you have to demonstrate ongoing record of accomplishments in the form of patents, in the form of publications, in the form of some kind of translational research that you might have. There are some writing tips you can take from someone who has been where you are now. Include results to show both feasibility and how relevant your proposal is. If you have expertise in a particular field, then make sure your references or your papers show those expertise. If not, provide strong preliminary data with new results or include collaborators who are from that particular field to highlight that yes, the proposal that is focusing on one kind of, expertise that is required in a particular field, if you do not have either in your papers or in your preliminary data, there is a collaborator who could do that. Try to strike a good balance between sufficiently high originality and what is already known. Right? That is most important. Don't forget to include in your own proposed experiments appropriate controls. That is what is important for undergraduate students also to understand. Whenever you are doing projects with your teachers, controls are very important. That helps you to analyze the data. So remember that. This is all that I wanted to share with you. Now I'm open for questions, which I think ma'am had. So it can be an interactive session after this. If you have specific questions, you can ask me. उमा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी सर, बताइए. थैंक यू, सच ए नाइस लेक्चर. अभी तो मैंने सोचा बाकी आपने क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हुए थे जी जी मैंने मोस्टली आंसर कर दिए हैं. नहीं अभी भी बहुत हैं. हाँ जी, तो एक इंटरेक्टिव टाइप बाद में हो जाता क्योंकि सर ने प्रोजेक्ट राइटिंग वाला आपके ऊपर छोड़ दिया है ना. हाँ जी. तो एक तो वही था जो आपको मैंने भेजे भी हैं कि फंडिंग रिलेटेड में बहुत सारे लोग जो सर भी बता चुके हैं ऑलरेडी. सबका यही जानना था कि फंडिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो उनको फंड कर सकते हैं. तो फंडिंग एजेंसी डीबीटी का तो मैंने मेंशन किया ही है. अब क्वेश्चन मेरा ये है कि हम किस लेवल का कर रहे हैं. फेलोशिप लेवल का कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स हैं या फिर ग्रांट्स के लिए हैं. फंडिंग एजेंसीज अगर हम देखें लाइफ साइंसेस के लिए आज की डेट में डीबीटी बेस्ट हमारे लिए है. हमारे लिए आईसीएमआर है, आईसीएआर है और हमारे लिए ग्रांट्स, स्कॉलरशिप और फेलोशिप्स का अगर हम देखें तो आपके और भी कई हाउसेस हैं. जैसे संगम हाउस एक फेलोशिप्स आती है, न्यू इंडिया फाउंडेशन फेलोशिप्स आती हैं. और ग्रांट्स आपके फंडिंग एजेंसीज जो हैं ये आपके डीबीटी, आईसीएमआर, डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएसएसआर जो कि आपके सोशल साइंस से रिसर्च के लिए हेल्प कर सकते हैं. और आपका इसके अलावा लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट फेलोशिप है जो लेडी टाटा ट्रस्ट है बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ. इसके अलावा आपके और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंडिंग करते हैं, बट ये मेजर हैं जिनकी वेबसाइट CSIR. ठीक है. एंड फेलोशिप्स के लिए मैंने आपको कई और नाम दिए हैं. इसके अलावा साउथ एशिया स्पीक्स करके एक है, राइट बियॉन्ड बॉर्डर्स, ये भी आपको ग्रांट के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं.
थैंक यू। और इसमें भी अभी भी एक सवाल है जो क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट आउट ऑफ साइंस भी हैं, तो ICSSR मैंने बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सब लोग यही कहते हैं कि क्या ICSSR के अलावा और कोई फंडिंग बॉडी नहीं है? CSIR साइंस के लिए है जी। और फंडिंग बजट अब बहुत सारी हैं मैम। हम क्योंकि साइंस से हैं, जनरली हम साइंस का ही देखते हैं। जी जी जी। तो वो अगर लखोटिया सर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको ज्यादा अगर पता है तो वो बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है सर, ये क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड है। ये क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड है, मैं देख भी रही हूँ साथ के साथ। अगर कोई मुझे, मैं तो साइंस का हिसाब के लेके चला था, तो आई नो दोस फंडिंग एजेंसीज फॉर UGC। अब UGC में पहले होता था UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में आपके पास स्टूडेंट्स के लिए काफी स्कॉलरशिप्स हैं, इवन आपके मिनिस्ट्रीज में काफी हैं। आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उनकी डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्कीम्स हैं। और हम पूछो। हाँ जी, Anybody else who wants to ask any question? चैट विंडो में कुछ क्वेश्चंस चैट विंडो में हैं। Yes, ma'am. There is one my question that what should be the word limit while writing a grant proposal? So that word limit is already mentioned in the proposal. का जो आपका फॉर्मेट है उसमें ऑलरेडी वर्ड लिमिट है, वही वर्ड लिमिट को हमें स्टिक करना पड़ता है। हर प्रपोजल का अपना होता है। International funding. And can you guide us for the international funding agency? That any international funding agency for the science? So इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी, अगर साइंस में अगर आप NIH से ग्रांट्स मिलते हैं आपको, इंटरनेशनल कई एक आई ऑल्सो गॉट बर्सरी एक है, मैं सर को याद होगा कौन सा होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। Ma'am, can I interrupt if you don't mind? Yeah, please, ma'am. It is interactive, I said, from this point. Yeah. So, namaste, sir. I'm Usha from Shashi's lab, actually. So, I mean, I thought I would say, there is also Mercury Fellowship. If you're willing to go abroad, there are several levels, at which you can apply for Mercury as well. So, this is a very productive and a very helpful grant. It's open if you're, with strong intention, and if you're able to write. For students, if they have to go abroad, there are a lot of opportunities. No, because it was talked. I mean, the topic was on international. I said there is an availability. There is a DAD fellowship also for students who would like to pursue research in Germany. But for writing grants, there is other NIH है, हर कंट्री का अपने हैं फंडिंग एजेंसीज। सो स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो हम फिर उनके हिसाब से देखेंगे उन्होंने बाहर जाना है तो क्या करें। अगर आप बाहर के साथ कोलैबोरेशन में ग्रांट्स करना चाहते हैं तो बहुत हैं एजेंसीज, मैंने लिस्ट डाउन अभी की नहीं हुई है, बट आपको मैं लिस्ट भेज सकती हूँ। जी भेज दीजिए। जी मैम, वन मोर क्वेश्चन, which agency funds architecture and planning projects? Which agency funds architecture and planning projects? मैंने यही बताया, मैं साइंस से हूँ, मैंने ना ये वाले देखे नहीं है ना फ्रैंकली। ओके मैम, इसके प्लानिंग कमीशन से कई मिल सकते हैं आपको, इतना मुझे पता है, बट मैंने आई हैव नॉट सीन। इफ सर हैज एनी आइडिया ही कैन गिव। and one more question that it is my question and no question is foolish. In DBT star scheme that's available for humanities also? So DBT स्टार का तो आप हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हो मैम? यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि DBT स्टार स्कीम के अंतर्गत क्या हम लोग ह्यूमैनिटीज में भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट्स को? हाँ, बिल्कुल। ह्यूमैनिटीज में आराम से ले सकते हैं मैम, बल्कि हमारा कॉलेज साइंस कॉलेज है, तो हमने हमारे मोस्टली 8 कोर्सेज अब DBT स्टार फंडेड है। बट आप हम मतलब आई नो दैट दे फंड इवन फॉर नॉन साइंस कोर्सेज ऑल्सो, जैसे
साइकोलॉजी को किया है उन्होंने जी जैसे इवन किसी कॉलेज में आई हैव हर्ड इन्होंने ये एक था आर्ट्स फाइन आर्ट्स बिकॉज दे वांट टू मेक वर्चुअल लैब्स तो उसमें थोड़ा सा दे हैव फंडेड सच काइंड ऑफ कोर्सेज आल्सो जी दैट वाज देयर इन 2018 आज की डेट में भी वो प्रमोट कर रहे हैं बट ज्यादा नहीं देते एक या दो डिपार्टमेंट्स को देते हैं जिनका लिंक हो सकता है साइंस because ma'am I am from English so I was there in their committee I know for 1 year they had done that but they just want to ensure that there is some kind of what kind of interlinkages with other science departments you can best quote okay even in there is a college in Duaba Punjab जी they have fine arts का department which is being funded तो ऐसा नहीं है कि वो करते हैं but हाँ आप because जी साइकोलॉजी का जैसे आप लिंक कर सकते हो साइंस ऐसे because literature is linked with every subject सो रिपोर्ट राइटिंग एंड अदर थिंग्स में आप हेल्प कर सकते हो बस वो आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा एंड स्टार कॉलेज ग्रांट्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्रांट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स because they can do small minor projects using that grant which वो रेखा मैम को तो ऑलरेडी मालूम ही है आप लोग कराते होंगे it's a mandate of Star College now. And in the same way, ma'am, you know that Dr. Sangeeta Kumar has asked the same question that now under new education policy in third year, we have the minor dissertations type of projects. So they can be funded by some agency? Minor projects का ना हम लोगों ने अभी तक तो मैम ये किया है जी कि इसका एक तरह से माइनर प्रोजेक्ट से हमारा प्रिलिमिनरी डेटा आ जाता है फॉर ए टीचर टू राइट बिगर प्रोजेक्ट्स इस तरह से लेते हैं बिकॉज माइनर प्रोजेक्ट्स आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक सेमेस्टर या 1 ईयर में कराओगे जी 1 ईयर है ना 1 ईयर तो 1 ईयर के लिए स्पेसिफिक अब जैसे बच्चों को इंस्पायर की फेलोशिप मिलती थी या फिर आपकी ऐसे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डिफरेंट फेलोशिप्स मिलती थी इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्कीम स्टार्ट की थी बीयू इनोवेशन प्रोजेक्ट्स जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर लेके अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स को 1000 पर मंथ की फेलोशिप मिलती थी टू इन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट इस तरह से कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल स्कीम्स हैं बट फंडिंग एजेंसीज में अभी इस तरह से अलग से नहीं है स्टार कॉलेज के तहत आपकी ये प्रोविजन है कि उसमें आप करा सकते हो जिसका डेटा प्रिलिमिनरी डेटा बच जाएगा जो आप वो टीचर it will come in research and colleges के लिए उमा जी एक और मेरा सवाल था कि जैसे सब ज्यादातर पार्टिसिपेंट कॉलेजेस से हैं तो क्या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए कुछ डिफरेंस होता है उसमें सैंक्शन में या कोई ऐसा जो कॉलेज टीचर्स के लिए को ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए अपने प्रपोजल्स में मैम अगर आपका प्रपोजल स्ट्रांग है तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं उनको योर प्रपोजल हैज टू बी स्ट्रांग एज आई टोल्ड यू इफ यू हैव प्रॉपर रेफरेंसेस टू शोकेस कि हाँ आपके पास वो एक्सपर्टीज है नहीं है तो आपके पास प्रिलिमिनरी डाटा है वो भी अगर नहीं है तो थैंक यू मैम तो फिर आप कोई कोलैबोरेशन में दिखा दीजिए आप उसमें यूनिवर्सिटी लेवल कोलैबोरेशन दिखा दीजिए यही देखा जाता है आपका प्रपोजल स्ट्रांग होना चाहिए काफी स्ट्रांग होना चाहिए हम जनरली अपने कॉलेज में क्या करते हैं माइनर प्रोजेक्ट्स जो हम स्टार कॉलेज के अंडर या फिर ड्यू इनोवेशन प्रोजेक्ट्स का जो डेटा होता है वो हमारा प्रिलिमिनरी डेटा बताता है उनसे हमारे पेपर्स भी आए जी तो वो एक स्ट्रांग फैक्टर हो जाता है जी and one more question it was coming in my mind that about the national seminars so if you want to organize a national seminar in our college so apart from UGC etc any funding agency which we can approach and national seminars are funded by DVT also ICMR also you have ICSSR का भी है ये आपका DBT का CTEP प्रोग्राम है DBT CTEP इसमें आप अप्लाई करिए वर्कशॉप्स करिए so means it can be go in multidisciplinary any साइंस का थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा लिंकेज बायोटेक भी जरूरी नहीं है जी थोड़ा सा साइंटिफिक ज्यादा चाहिए लाइफ साइंसेस
लाइफ साइंसेस का बहुत अच्छा है सीटेट प्रोग्राम। आईसीएमआर का है, आईसीएमआर में मेडिकल ओरिएंटेड थोड़ा सा भी रखना पड़ता है। जी जी। आपका आईसीएसएसआर है, आपका सीएसआईआर है, यूजीसी के अलावा मतलब सारे ये लाइफ साइंसेस के प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। And because most of the colleges that the colleges of Agra University or other universities, they are in villages. So what kind of funding available for research and development for the colleges functioning in rural background? मैम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का तो वैसे ही अब फंडिंग एजेंसीज को काफी पुश किया जा रहा है कि इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिफरेंट स्कीम्स निकालें। तो मैं वही कह रही थी कि हर एक को मतलब एक ये पॉलिसी डिसीजन ले लेना चाहिए इंस्टीट्यूशन में कि देयर शुड बी ए कमिटी मेड फॉर एवरी कॉलेज फॉर दैट मैटर, जो कि फंडिंग एजेंसीज का वंस इन अ मंथ चेक करे कि क्या क्या स्कीम्स आई हैं। बिकॉज जो स्कीम्स निकलती हैं वो 1 या 2 मंथ के लिए ऑन होता है कॉल। कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो ओवर द ईयर ओपन रहती है। ऐसे ही कुछ हर फंडिंग एजेंसी में सोसाइटल प्रोजेक्ट्स करके भी एक स्कीम्स होती है जहां आप सोसाइटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, वहां पर इनके डाल सकते हैं। अलग स्कीम होती है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए होती है। Okay. So these are under aspirational, you can say. No, not under. You will find it under societal projects. Societal. चाहते हो तो डीबीटी को खोल दूं? जी, आपको दिखा देती। जी जी, आप दिखाइए प्लीज। जैसे ना आपको ये डीबीटी में मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन अपनी, so that you can see. Is my screen is visible? Yes, it is going. यहाँ पर देखिए स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में रिसर्च के ये हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग है कि टीचिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, नेशनल फेलोशिप्स बच्चों के लिए जेआरएफ, आरए, भान फेलोशिप, इंटरनेशनल फेलोशिप्स बच्चों के लिए हैं, अवार्ड्स हैं डिफरेंट, साइंस पॉपुलराइजेशन का ये देखो डीबीटी सीटेप प्रोग्राम मैंने बोला था जी, ये रहा। और जो अभी आपने पूछा है मुझसे सोसाइटल ना, वही देख रहे स्पेशल प्रोग्राम्स। ये देखिए स्टेट्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, सोसाइटल डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? जी जी जी, ठीक है। तो ये है, काफी है मैम, आपको वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। नहीं, टुडे वी विल सी। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, आइडियली हम क्या करते हैं, एक कमेटी बना लेते हैं जी। वो कमेटी का काम ही होता है ऐसे हमारे साइट्स पे जाके, जो मैंने साइट्स आपको बताए वो मैंने अपने एक्सपर्टीज वाले जो हैं वो बताए हैं। ऐसे अगर आपको मैं लिस्ट भेज दूंगी, हमारे कोलीग्स हैं जो कि डिफरेंट मतलब नॉट इन साइंसेस, वी आर लुकिंग फॉर मिनिस्ट्री ग्रांट एंड अदर ग्रांट्स, उनके भी हैं आइडियाज, बट मैंने लिस्ट डाउन नहीं किए थे अपने लिए बिकॉज आई एम नॉट ऑफ दैट फील्ड। एंड वहाँ की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी रेखा मैम जी, आप उनको वो शेयर कर दीजिएगा, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। एंड इनकी साइट्स में जाना पड़ता है, एवरी मंथ एक दिन आप रखिए उस कमेटी को, मिलना है और देखिए, एंड वो फिर अवेयरनेस पूरे कॉलेज को दे कि ये निकले हुए हैं कॉल्स, इसका ये डेडलाइन है, और उसके वही कमेटी समझा दे सबको कि इसकी ये रिसर्च डालने का तरीका है। और ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख के सबमिट करने के लिए, अच्छा प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए साल लग जाता है, इसलिए पहले से ही लिखना शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए कॉल पे। यू राइट, लिख कर रखिए अपने पास, जिससे रखिए उसका जैसे ही आपको पता चल गया ये कॉल्स ऑफ प्रपोजल्स होते हैं इस फंडिंग एजेंसी के, तो नेक्स्ट ईयर निकलेगा ना, तो आप उसको स्ट्रांग अगर बनाना है तो आप उस ईयर में प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्ट करिए, लिख के रखिए कि नेक्स्ट कॉल में आप डाल जी। Any other question? Anybody wants to ask? Dr. Sangeeta Kumar? I think so. Actually, we have to sit down and do it and then ask if there are any problems. So I would suggest आप ना जिसका मैंने लिखा, जैसे
मेंटरिंग जरूर लीजिएगा। जब आप प्रोजेक्ट पहली बार लिखते हैं अपने आप को छोटा मत समझिए। मैंने भी हमेशा माय सुपरवाइजर इज प्रोफेसर दमन सलूजा, रेखा मैम नो सर। सो आज भी अगर मैं प्रपोजल अपना कहीं डालती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी नहीं हुई हूँ, तो मैं यही करती हूँ, उनको पूरा भेजती हूँ, उनके क्रिटिकल कमेंट्स लेती हूँ। एंड शी इज सो नाइस कि वो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इवन दो हम लोग भी अब टास्क फोर्स में हमें भी बुलाया गया है, बट अंडर ग्रेजुएट लेवल रिसर्च के लिए, जैसे स्टार कॉलेज और ऐसे। बट मैम तो बहुत बड़े बड़े फंडिंग एजेंसीज में जाती हैं, डायरेक्ट के प्रोजेक्ट्स के लिए टास्क फोर्स में होंगी, तो उनको ज्यादा आइडिया है। critically she'll evaluate my progress, my project, and give me comments so that I improve. Then she ensures कि मैं उनको दिखाऊं फाइनल वर्क before submitting. तो इसलिए it's a good practice कि आप अपने mentors हाथ में रखिए, उनसे मतलब at a level of college, I would always be say कि आप We have our mentor Dr. Rekha Arya, so we can always ask her. Yes, of course. Definitely, I am always there. But ma'am, I will send to you. I will take your help because you know that literature is my subject. So how I can join it, because you know that for literature I will actually I have a colleague of mine जो बहुत सीनियर है, उनसे भी आपको लिंक कर दूँगी। जी, because I find that Hadidi has taken means before that this DBT star scheme also, so I was also thinking in the same line, but the thing is that no guidance is available here for me, for myself, I think. So this is the problem with me. Thank you so much, ma'am. Any other question, दीदी? जी एक बार स्क्रीन जरा शेयर करिए DBT वाला, मुझे इमेज लेनी है। हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको जो स्लाइड्स भेजी है ना मैम, उसमें इसकी साइट भी लिखी हुई है। ओके, जी थैंक यू, ले लिया। So now I think it was a very fruitful session. So Professor Uma Chaudhary and जी Department of Biomedical Sciences, Bhaskaracharya College of Applied Sciences, New Delhi. Really, I कुछ कहना चाह रहे हैं जी, I think सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर बताइए। सर आप अनम्यूट करना पड़ेगा। म्यूट हैं आप अभी, आप म्यूटेड हैं। The talk given by Professor Uma Chaudhary has been very informative, and I'm sure it will be very useful to all the college teachers or investigators. So I must compliment Professor Chaudhary for doing this and doing it so well. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. And it is such a wonderful meeting you, seeing you today. I'm blessed. Thank you. so ma'am, I must thank Rekha ma'am for giving me an opportunity to speak here. Chavi ma'am has something. Chavi. So I put my hands together, ma'am, in reverence for your presentation. Very clear. Yes, sir. यस नमस्कार मैडम, मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ मैडम, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी फंडिंग को करने के लिए या किसी भी प्रपोजल को डालने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है वो हमें नहीं मालूम है, तो वो आप हमें स्टेप बाय स्टेप बतला दीजिए, या कोई फॉर्मेट आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, स्क्रीन पे हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं जिससे कि ऐसा है और एक को मैं ना कुछ अपने प्रोजेक्ट्स भेज दूंगी और एक कर लीजिएगा। एक प्रोजेक्ट है ना वो मैं मैडम, वो आपको हेल्प। एक चीज और मैडम, ये जो प्रपोजल हम लिख करके भेजते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? मैं वही कह रही हूँ, फाई होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए और उसका सेटअप कैसा होना चाहिए? वो सब उनके इंस्ट्रक्शंस में आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके, थैंक यू मैडम। इवन ये लिखा होता है कि टाइम्स न्यू रोमन में हो, कितना गैप हो, वो अगर नहीं फॉलो करोगे तो वहीं रिजेक्ट हो जाए। Right. Any other question?
मैम Now आपको in- भेज दूंगी थोड़े जी, से जी, प्रपोजल, so that will help you out. जी ठीक है. Thank you so much for organizing this and calling me here. So fortunate to interact with all of you. Now I Richa, invite I'm so happy to see you also. and we are also very happy, ma'am, to see you again. to see you again. ठीक है. So now I invite. Good afternoon, ma'am. Myself, Dr. Hriday Sharia from Department of Geology, NRC College, Khurja. Yes, ma'am. सुन रहे हैं मैम मुझे? जी, हाँ आ रही है आपकी आवाज. हाँ जी. मेरे को मैम अभी यूपी गवर्नमेंट की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम है उससे मुझे एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है दिसंबर लास्ट वीक में, लेकिन उसका अभी तक मेरे पास आया कुछ नहीं, बस एक लिस्ट जारी हुई थी. मैम टाइम लगता है. टाइम लगेगा. अच्छा. टाइम लगेगा. फिर आपसे थोड़ी सी चीजें मांगेंगे, वो आपको सबमिट करना होगा. पैसा आने में और भी टाइम लगता है. तो अभी मतलब वो कांटेक्ट करेंगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि हमें पता ही ना चले. नहीं वो आप करेंगे. जी. चलिए मैम, आपका टॉक बहुत अच्छा था. इट्स वेरी इम्प्रेसिव. थैंक्स सर. Thanks to you if you have understood something. I'll share whatever information I have. ओके, थैंक्स. ठीक है मैम, I'll take the leave. Thank you. Actually, I'm in college and I have a meeting right now. I told you, na. 5 minutes more. 5 minutes more. Now I invite Dr. Archana Bansal to give a formal thanks to our